ये व्हाट्सएप चैट इज विजिबल। शेयर किया सर आपने? हाँ आपका स्क्रीन फ्रीज है। एक्सेल शीट विजिबल है। अच्छा, मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? हाँ, एक्सेल नहीं दिख रहा है सर, व्हाट्सएप दिख रहा है। व्हाट्सएप दिख रहा है। चलिए एक मिनट, शेयर स्क्रीन में पूरा स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है? Yes, yes, yeah. Okay, so now we are done. Okay, so now if you look at this, so first you can say quarter went with just 8,500 rupees as the profit. Okay, and then the actual thing started. Still people are joining and I'm helping them to join. So now if you look from here, okay, या तो आप नीचे से ले लो, चलो यहाँ से ही ले लो। Okay. So now if you look from 7th Gen to 4th Gen, which is the last trade we took, okay, this is what we are, having as 4th Gen. So the profit is almost 2,95,000 and 325. Okay, somewhere I think I missed one more trade somewhere. Was मैंने अभी just किया था, तो it was coming to 3,25,000. 3,25,30. So this is what is where we are closing the year. Now, even if you don't take this trade, which is January, okay, then too, if you take from here, it is around 3,05,000 or 3,06,000. Okay, so that is where we go as the thing. Okay, so ये खुद तो गड़बड़ है, it is okay. 2,95,000 ये कुछ कम नहीं है, 2.5 लाख का आपका ये है, आपका इन्वेस्टमेंट है. Okay, so on an investment of 2.5, you are getting it. Second salient feature this year is, अगर आपने last year देखा रहेगा तो last year का summary में you would have seen we had got back-to-back losses. या maximum drawdown was 47,000. This time अगर आप देखोगे तो this is the highest drawdown back to back. Okay, ये एक ही आपको दिखेगा, बाकी ये दोनों मिला के भी 15,000 है. So this is the highest drawdown we have seen this year. So somewhere that additional buffer that we are started to apply. Okay, ये देखो ये back to back नहीं है एक भी. Okay, that has been also supporting us in getting this result. Okay, so yeah, somewhere this has helped us a lot. And finally, the last quarter, if you just go to see from October till date, okay, so that has come to almost 94,000 as profit. Okay, so still, good quarter for us. So these are the actual results, and everyone who has been with us, traveled with us, can easily confirm. Okay, so main purpose of doing this quarterly meet is that everyone who are older students, they can, add confidence to the new people who are joining this, and to tell, everyone, yes, this is possible. Okay, because this is one of the things which even people outside are not able to relate. कि 100% return कौन देता है? Okay, so this is somewhere, we are able to now prove to everyone that no, this is something doable and ये तुक्का नहीं है. This is now, if you look, this data is almost 3.5 years old data since we started MCT Top Bottom as a paid WhatsApp group. Okay, ये वहां से लेके डेटा है अपने पास. Okay, so if you look at that, the data every year minimum is 3 lakh, 3,10,000, 3,30,000 profit that we've been seeing throughout. Okay, so that is where this is something which gives boost to students who are still feeling that ये चलेगा कि जिन्होंने किसी का सुन के ये कोर्स किया है. Okay, so that is the main purpose for which we do this quarterly meet. Second is few thing which I would like to share is, if we are in a trade, okay, please don't give me your views about कि यहाँ से अभी reverse हो रहा है, we should book profit. If you want to do that, do it in your account. I have seen
मैं जब मेरा क्वांटिटी डिस्प्ले करता है, मुझे कोई दिखावा नहीं करना है कि आई एम डूइंग दैट क्वांटिटी। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि आपका जितना भी क्वांटिटी है ना, उसके सामने मेरा काफी क्वांटिटी है। So if I am taking some decision on a trade, I know why I am taking it. Okay, so मेरे reasons है, मुझे मालूम है मार्केट कहाँ तक जा सकता है from my experience. Okay, so that is the reason why I was standing and I was waiting for my levels to come. Okay, उस दिन अगर मैं थोड़ा भी upset नहीं हुआ रहता था, हम सबको 1000 points मिलते थे. It went almost till 42,070. तो हमको इजीली 42,150 या 165 अपना एक्चुअल 1000 पॉइंट्स मिल सकता था। ओके, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि आपको जहां पे डब्ल्यू और रिवर्स भी दिख रहा था, मुझे फ्लैग दिख रहा था। ओके, सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई देयर इज अ फ्लैग एंड नॉट डब्ल्यू। लेट मी शो यू इफ माय समवेयर माय जीरो दा इज ओपन। क्या आई कैन ओपन इट। Let me open here. Zero one. अरे अरे अरे, इधर चला गया भाई तू। Okay. So now if you see this, यहाँ पे आप लोग ने मेरे को बोलना चालू किया, दिस इज आर्ली। आई वाज लुकिंग एट आर्ली चार्ट बिकॉज आर्ली वाज बिलो 40 एंड रेजिस्टिंग 40। ओके, अगर आपको ये नहीं नॉलेज है तो छोड़ दो, आप गाइड मत करो किसी को। ओके, सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से। ये मेरा लाइन ड्रॉ किया हुआ है पुराना, मैंने तभी उस दिन नहीं ड्रॉ किया है। और आप देखो तो दो डोजी उसके नीचे पे रेजिस्टेंस पे बने हैं। ओके, एंड देन सी दिस, सो दिस वाज 250 पॉइंट्स पोल, और ये दूसरा 250 पॉइंट्स का पोल दिया उसने। आई वाज वेटिंग फॉर दिस। ओके, सो 450 पे 250 इज ऑलमोस्ट 200, एंड मेरे जितने भी क्लाइंट्स है मैंने 200 पे बाई किया है। ओके, सो whoever might have seen in my clientels, मैंने उनका सब में 200 पे बाय बैक किया है, मैंने 265 पे नहीं किया, बिकॉज आई वाज सर्टेन अबाउट दिस फ्लैग एंड इट्स मुझे 15 मिनट्स के चार्ट पे आप लोग ने ये भेजा था कि दिस इज लुकिंग लाइक डब्ल्यू, दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस, डब्ल्यू सेटअप। यस, बट ये भी तो फ्लैग है, ये देखो, ये यहाँ से नीचे फिर इतना, और ये ब्रेकआउट के बाद नीचे सीधा ब्लैक फ्लैग है ये भी। सो आप ये मत देखो कि वॉट एवर यू माइट बी सीइंग एंड इफ यू फील टू क्लोज इट, आपको डर लग रहा है, आपको ग्रुप के साथ नहीं रहना, इंडिपेंडेंट हो सब लोग। ओके, सो डोंट आस्क मी टू पुट इन द ग्रुप टू क्लोज इट। Okay, please don't advise me, is a humble request to everyone. Okay, I will take a call and I know मेरा क्वांटिटी भी मैं इसी के लिए डिस्प्ले करता हूँ, और एवरी टाइम मेरा ये क्वांटिटी बढ़ेगा। ओके, सो आई कांट कीप इमोशनल अटैच्ड to market. I have to see what the markets are doing also. Okay, so please I will just say that कि सबको लॉस हो जाएगा, वैसा मत करो। ओके, एंड आई नो मेनी पीपल जो अपना स्टॉप लॉसेस भी था, एक दिन ऑलमोस्ट 488 तक गया वो, और 500 का अपना स्टॉप लॉस था, 12 पॉइंट से बचे हम। तो तभी भी बहुत लोग ने डर के निकल गए थे, एंड दे ऑल्सो रिवर्स्ड। If you are doing that, don't put it anywhere else because you are not following system. So don't put that you do the system. So please, the system को भी बदनाम मत करो. Okay. And second thing is, last thing on the piece of advice which I want to share is, let any trainer or any person speak negative about top bottom. I think we have got enough evidence to tell that person that is working, it might not be with you. Okay, because I know there are few trainers who are against this. Okay, but they might not be doing the way we are doing it. Textbook top bottom नहीं चलता, ये मुझे भी मालूम है, but we are not doing textbook. Okay, so that value for that subscription
okay, of top bottom is because it's beyond textbook. Okay, so that is the reason why I would just say that वो सब चीज लेके मत दिखाओ कि ये तो ऐसा बोल रहे हैं तो फिर भी हम टॉप बॉटम में कितना करना चाहिए। मैं इसके लिए मेरा क्वांटिटी से एविडेंस देता हूँ, मेरा कन्विक्शन कितना है इस पर। Okay, if I am trading with almost 6 years on one particular instrument only, you should understand that conviction that I am having on it. Okay, so that's it. I think so we've seen the results. Few things which I wanted to share because I get disturbed when people start either calling me or sending me private messages. Okay, so that is where I just wanted to share. So please don't do that. It will impact every one of us. And last quarter अगर हमने देखा रहेगा तो we had discussed कि हम लोग खाली 1000 पॉइंट क्यों लेते हैं, हम क्यों बियॉन्ड रुकते नहीं है। ओके, अभी ये टाइम अगर हम दोनों टाइम शॉर्ट ट्रेड में रुकते थे ना तो नेक्स्ट डे लॉसेस में बंद होता था। अभी आज का ही दिन देख लो, द वे द मार्केट हैज बाउंस बैक। एंड प्रीवियस ट्रेड जो हम लोग ने दिसंबर 23 या 24 को बंद किया था, एंड देन पोस्ट क्रिसमस यू सॉ हाउ 1200 पॉइंट्स वन साइडेड मूवमेंट केम इन मार्केट। Okay, so you need to learn that support resistance and everything to have the idea। and इसके लिए हम group में I think I had clearly put the reasons also on why we are getting out of it। Okay, so if you see that also was mentioned। Sir, हाँ with your permission, हाँ परसों when I squared off my position, हाँ some people in my office were laughing at me. हाँ I said my boss has told me 1000 points is more than sufficient, and that's why I'm exiting the trade. He हाँ was like, your system, you are breaching the system. I said, हाँ। okay, we'll see on Monday. Today I just smiled at him, nothing else, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। अभी हमको नया बॉटम भी मिल गया ना, so now if we again we can short at around That's- 40 yeah. to 300, right? So that is what Yes. the beauty of our rules and regulations are। Okay, so वो तो छोड़ दो, उसको टेक्स्ट बुक लोग है, टेक्स्ट बुक को हम पैर छूते बस है, हमको उनको नहीं फॉलो करना है। Okay, so even this reasons which we were specifying, if you're looking at it very carefully, you would see that it was at price support, gap support, and there is nothing ऐसा कुछ खराब न्यूज नहीं है मार्केट में जिससे मार्केट टैंक होते जाएगा। ओके, एंड द कन्विक्शन ऑफ दिस शॉर्ट ट्रेड वी टुक, ओके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द डेली चार्ट। ओके, तो डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हुआ था जब 60 को रेजिस्ट किया गया था। ओके, सो इट इज अ बेरिश एंगल्फिंग एट 60 रेजिस्टेंस। तो उसका टारगेट भी, अगर आप स्विंग ट्रेड समझते हो, उसका टारगेट भी 60 रेजिस्टेंस का टारगेट इज 40 सपोर्ट। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी ट्रेडेड सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो मैं और कुछ नहीं ट्रेड करना चाहता हूँ, और मुझे मेरा नया बॉटम भी मिल गया है। अगर कल मार्केट वापस गिरने वाला है तो आई एम ओके। Okay, so that is something different things. So do not worry on all those things. Don't listen to anyone. We know, and our results are speaking much louder than anyone else. Okay, ज्ञान बांटना सबको आता है, प्रैक्टिकली करके दिखा दे जो हम करते हैं, we will give up। Okay, so today even with us we have Motilal Oswal people, because I know many of you have approached me कि हमको भी अभी clientele चालू करना है, सब brokership चालू करना है, right? So they have also prepared one document where they will take us through के अगर किसी को भी सब broker बनना है तो क्या क्या लगेगा, and what is needed by us to give them, and who from Motilal will help us। Okay, so that is what we they will share। So I will give them, I think abhi 8:20 hai, so around 8:40 they will give, or take at least 10 minutes to specify all the things, and I have their PDF open with me, so I'll share that also। Okay, now anybody who wants to share their experience, who are new, okay, I don't want Bhushan Shewade to directly speak right now, because I know I want to Bhushan to speak on what he has adapted now, because the person who was fearing to do at least 2 lots, 3 lots at a time is now Bhushan kitna 34, correct me if I'm not, if I'm wrong, 34 है या उससे ज्यादा lots है तुम्हारे? नहीं 26 है अभी। 26, हाँ।
So सर मैं how? सर महेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ महेंद्र, एक्चुअली वही मुझे पूछना था। अभी मैंने भी एक लॉट से शुरू किया था, अभी 4 लॉट हो गए। हाँ लेकिन आपका गाइडेंस इसके लिए चाहिए था कि अभी लॉट साइज और कैसे बढ़ाने का। अच्छा वो that I will take up. Okay, so ओके। okay, anybody who wants to queries है, please post that queries and I will answer that. So one query which he has come up, okay, is let me just put it here. Okay. How to increase lot size? Okay. Then any other query than this? You can unmute and speak. I want to share my experience. Acha, Abhijit, okay, you can share. Sir, can you show how you determine the levels for TB daily, especially for taking new positions? हाँ ठीक है, we will do for tomorrow. कल का लेवल्स हम साथ में मिलके करेंगे. Okay. Increase lot size. Okay. But Preeti, hope you are convinced to do now purely Bank Nifty. है Nifty का आप देख रहे हो क्या results है? Okay, so I think Bank Nifty is the only thing which you should be looking forward to. Okay, तो अभी कल का levels भी हमको साथ में करना है तो let me just do this. एक मिनट दो मेरे को. Okay, क्योंकि everyone wants that levels कैसे निकलते हैं. हाँ, and I want to also reiterate on the rules because मुझे बहुत बार ये बताया जाता है कि भाई हम 0.5% क्यों नहीं ऐड किया, आज क्यों 1% ऐड किया. तो वो भी हम क्यों करते हैं ना, वो भी मैं आपको वापस वो रूल पे लेके जाके वही रूल वापस समझा दूंगा. Okay, so let this now continue. Okay, so simple rule that we have. एक मिनट व्हाट्सएप पे ही है वो. ओके, तो आई थिंक मैंने सुबह प्रीति आपको ही भेजा था, तो लेट मी ओपन दैट शीट हियर. ओके, सो दिस इज आवर रूल. हाँ, गुड इवनिंग सर, दीप दिस साइड. यस सर दीप. साथ में वो भी थोड़ा बता देना, वो भी कंफ्यूजन है कि कभी वो दिसंबर और जनवरी में कब दोनों चार्ट कंबाइन करके देखना है और कब सिर्फ सेम सीरीज का देखना है. हाँ 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 हाँ, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा. अरे ड्यूरिंग कोरोना तो वी गॉट 11,000 पॉइंट, तो वो आप जाने दो बिकॉज दैट वाज व्हाट इवन माय एनालिसिस वाज सेइंग. 22,000 वाज एक्सपेक्टेड ऑन बैंक निफ्टी. ओके, सो इफ यू सर हैव 11,000 या 11,000 points on Bank Nifty. So if you look at 11,000 yes sir, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ. एक मिनट, ऐसा 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 शॉक मत लगाओ मेरे को, मैं डर जाऊंगा. रुको रुको. Okay, so this is what it is. See, two short trades and see the points. Almost 10,800 points आपके सामने. ओके, ये यहाँ पे बंद करने का भी एक रीजन था मेरा, क्योंकि दिस वाज 22,000 वाज माय टारगेट ऑफ द एम और द हेड एंड शोल्डर व्हिच वाज देयर ऑन बैंक निफ्टी ऑन डेली चार्ट्स. ओके, तो उसका मेरा टारगेट आ गया, मैं निकल गया. फिर सिस्टम ने वापस मेरे को ऊपर में शॉर्ट दिया. अगर आप देखोगे तो वो शॉर्ट मेरे को 23,845 है. ओके, तो वो टेंशन मत लो. और ये ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट एक महीना चला था. 14 फरवरी वाला ट्रेड, मतलब वो वैलेंटाइंस डे में जिंदगी में नहीं भूल सकता. क्या वैलेंटाइन हुआ था उस दिन. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट वैलेंटाइन आई एंजॉयड इन मार्केट. ओके, so this was one of the trades. So this is in front of you. This is Corona 4. Okay, see this date is 2020. Okay. Wow. In fact, sir, I wanted to share with all the participants. I have been associated with SwayChart from last 3 years, but I did not had the conviction because I had suffered a huge loss prior to joining SwayCharts. लगभग 1.25 करोड़ का लॉस हुआ था मुझे. तो ट्रेनिंग होने के बाद में भी मुझे कन्विक्शन नहीं था. उसके बाद में आई वाज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड आई वाज कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग ऑल द लेवल्स. And almost after 2.5 years, I got convinced and I finally restarted rather top bottom. Initially for say 2-3 months I did 1 lot 2 lot ऐसे करते गया. उसके बाद में मैं कमल सर से फिर से मिला. उन्होंने फिर से मुझे कन्विक्शन दिया कि इफ यू वांट टू डू बिग क्वांटिटी यू कैन
look at big quantity also. और जो मेरा परसों का जो ट्रेड था, that was the first trade with such a huge quantity, and it was a very successful trade, and it's all because of the कमल सर's conviction, और जो push उनके वजह से मिला, I think वो उसी की वजह से possible हुआ. So I really would like to thank Kamal sir for this. Don't thank me, thank yourself for believing in that, system. Okay, so first of all, I want every one of us to congratulate each one of us, because those who took all the trades shows, conviction in the system. Okay, because there are many people who have, not traded. Okay, who have not traded also, and still have lost multiple opportunities. Okay, so when you see such things, I think the conviction has worked, and it is your conviction. मैं तो कुछ भी बोलूंगा, लेकिन आपने वो बिलीव करके किया ना, so hats off to every one of you. And since we are discussing results, I think Bhushan, if you can speak on how you keep increasing your lot size, because तुम्हारा लॉजिक मेरे को काफी डिसेंट लगा और अच्छा भी लगा. यस सर, थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ईयर जैसे अभी एक सर ने बोला, वैसे ही मैंने भी फर्स्ट ईयर ऑब्जर्व किया था, और सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड विथ ओनली वन लॉट. तो मेरे दिमाग में वो स्टोरी शायद आपने सुना होगा पहले, कि मैं बाइक लेने वाला था, तो बाइक के बदले, और तभी कोविड का भी पीरियड चालू हो रहा था, आई थिंक अर्ली था थोड़ा सा, तो मैंने एक लॉट से किया था, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो बाइक का पैसा आ गया था. तो समाव वो कई दिमाग में बैठ गया था. एक परेश सर का भी लाइन था कि बाय मतलब तुमको कुछ लेना है तो पहले कुछ ऐसा खरीदो जो तुमको लेने को इक्विप्ड करेगा. सो आई वेंट विद दैट लॉजिक, और उसके बाद दिस ईयर मैंने ऐसे सोचा कि मैं कार के साथ ये करने वाला हूँ. तो सबसे पहले न्यूज तो मुझे ये शेयर करना है कि सिंस अप्रैल मैंने कार के लिए ये किया था, एंड मेरा कार का पैसा भी अभी आ चुका है एज सच, तो दैट इज वर्किंग फाइन. और दूसरा लॉजिक मैंने ऐसे इस्तेमाल किया था कि जब मैं एक लॉट से चालू किया, तो व्हेनेवर उसका 2.5 बनता है, यानी इनिशियली फर्स्ट ईयर में हमको 100% रिटर्न मिलता है. सो फर्स्ट ईयर कुछ मैंने इंक्रीज नहीं किया था, लेकिन आगे जाके मैंने थोड़ा एक लमसम कैपिटल ऐड किया था. फॉर एग्जांपल लेट से मैंने 5 लॉट्स ऐड किए थे, तो 5 लॉट्स पे 2.5 लाख जब फर्स्ट प्रॉफिट हो जाएगा, यानी क्यूमुलेटिव प्रॉफिट. सपोज जैन से लेके 5 लॉट चालू था, और अप्रैल में मेरा टोटल प्रॉफिट इज 2.5 lakhs ऑन 5 लॉट्स. तो मैंने 6 लॉट वहां पे ये ऐड कर दिया, rather than वेटिंग फॉर जैन. और फिर वो ऐसे बढ़ते गया, यानी हमेशा 1.5 के अराउंड अपना एंट्री रहता है, और अराउंड 1 लाख का हमको बफर रखना होता है. तो 1 लाख का बफर मेरे अकाउंट में प्रॉफिट प्लस बफर ये कंफर्म होने के बाद ही मैं नया लॉट इंट्रोड्यूस करता हूँ. सो दिस इज माय लॉजिक. भूषण जी, लॉजिक. हाँ, बोलो. भूषण जी, यू मीन टू से कि फर्स्ट लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, एंड इफ यू रीच टू अ प्रॉफिट फिगर ऑफ 2.5 लाख, उसके बाद आपको 2 लॉट चालू करना चाहिए, करेक्ट? हाँ. See, I will tell you the logic behind it also. अभी समझो आपने 2.5 लाख से चालू किया, ओके, और अभी 4 लाख हो गया. एक लॉट करते करते आपका 4 लाख का टोटल अकाउंट वैल्यू हो गया, एंड आपको लगता है कि भाई इतने में 2 लॉट इजीली हो सकते हैं, बिकॉज 1.5 लाख इज द मार्जिन. तो आपको 3 लाख तो वो है, और 1 लाख एमटीएम के लिए है, तो क्यों 5 लाख के लिए रुकू? लेट मी स्टार्ट. ओके, एंड यू स्टार्ट विथ 2 लॉट्स. नाउ लेट्स से इफ यू स्टार्ट गेटिंग सम लॉसेस, okay, then you'll be pushed back to go to 1 lot. So condition for whoever is asking this now, कि हमको lot size कब बढ़ाना है, condition to increase the lot size is if your increased lot size you can sustain with any drawdown for 1 full year. That is the duration, or that is the capital with which you should go for increment in lot size. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जल्दबाजी में लॉट साइज इंक्रीज कर दिया,
कैपिटल इन्फ्यूज नहीं हुआ है या कैपिटल उतना बना नहीं है, एंड देन इफ कंसेक्यूटिव लॉसेस कम्स, यू आर फोर्स्ड टू गो बैक टू वन लॉट, बिकॉज फिर क्या होगा कि प्रॉफिट एक लॉट पे आना चालू हो जाएगा जबकि आपका लॉस टू लॉट्स पे हुआ है, एंड देन यू माइट लूज दैट कैपिटल दैट यू हैड मेड इन वन लॉट्स प्रॉफिट ऑल्सो। और वो जो लॉस दो लॉट पे हुआ है या इंक्रीज क्वांटिटी पे हुआ है, उसको भरपाई करने के लिए ज्यादा टाइम जाएगा। ओके, सो क्लियर? इस पे किसी को कुछ डाउट है? सर फंड शुड बी, बफर हम यस। लोग सर बफर हम लोग मिनिमम 1 से 1.25 तक रखे तो वी आर इन द सेफेस्ट पोजीशन ना। मैं 1.25 पकड़ के चल रहा हूँ। एक लॉट मैंने सोचा एक सर, प्रॉफिट कम करेंगे ज्यादा रखो, ज्यादा करो तो भी चलेगा, बट मेरा हिसाब से 90,000 का जो मैंने बफर रखा है ना, ओके वो 2019 का मेरा एक बैक टू बैक लॉस था, उस पे था। उसके बाद सिस्टम हैज इवॉल्व्ड, वी हैव चेंज द रूल्स। तो अभी आप ही देख लो, 2019 में मुझे 75,000 का बैक टू बैक लॉसेस आया, फिर मुझे आया 47,000, फिर 40,000, ये साल खाली 25,000 सर, बैक टू बैक। बस परफेक्टली यही पॉइंट पे आ रहा था। मैंने 125 का इसलिए रखा कि जब भी सर आपका आया था 75 तब भी फर्स्ट टाइम था ना, तो हाँ। देयर इज पॉसिबिलिटी कि कदाच कि 90 का भी हो सकता है। होने को तो सर मार्केट है सर। तो अभी वो ही जानना था सर कि ये लास्ट ईयर का मैंने पूरा एनालिसिस किया तो 25,000 वाज द मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लॉस, बोलो कुछ भी, 25 वाज मैक्सिमम। यस। और वो सर जब भी मैं मई से ज्वाइन हुआ तो तभी हम पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम आधा % का बफर नहीं रखते थे। तो ये आधा % का बफर ऐड करके इतना रिजल्ट बढ़िया आ रहा है सर जी कि इट वाज लकी ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। कि और आधा किया तो सर क्यों आधा ही ऐड किया, नहीं पौना ऐड किया, नहीं पा ऐड किया, या नॉट अ कैंडल लो ऑफ दैट स्विंग? वो एक बिकॉज दिस मेन इज मुझे ट्राइड ये एंड जानना। 0.5% पहले से है, बाय द वे। स्टॉप लॉस पे 0.5% पहले से है। ओके, ओके तो वो कुछ नया नहीं है। मैंने एंट्री लेवल पे बफर लगाया रही है। सर एक बार वो रिपीट चार्जर। करेंगे क्या सर? एक मिनट, मेरा चार्जर चार्जिंग चला गया है। 2 मिनट दो मेरे को। स्वयं मामाच्या बॅग मध्ये जल्दी काढ। मैं मेरा चार्जर ढूंढ रहा था सर। हाँ, मैं भी वही कर रहा था। આપણી રૂમમાં જે છે વ્હાઈટ બોર્ડ, અરે ક્યું યાર? शाबाश। सॉरी गाइस, थोड़ा, क्योंकि ये लैपटॉप का चार्जर यूएस का है और मेरे पास कन्वर्टर थोड़ा दूर था, आई हैड टू रश टू एक्चुअली गेट द कन्वर्टर बैक। ओके, ठीक है। सो नाउ वी आर, हाँ, तो अभी क्या क्वेरी था वो बोलो अभिजीत। सर सर वो लॉट साइज एक बार आधा- आप if you could reiterate। हाँ ठीक है, लॉर्ड साइज का रिपीट करता हूँ। दीप का क्या क्वेरी था? सर वो मेन आधा % तो ऐसा होगा, मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि मैं आया हूँ तब से प्रॉफिट ही देख रहा हूँ मैं मन से। तो स्टार्टिंग हमने 9 कंसेक्यूटिव हमने कैच किया था। तो हाँ, क्यों सर वो आधा ही हमने डाला है? उसके पीछे सर कोई स्पेसिफिक रीजन? और ये हमारा इस वो साल मेरा इतना R&D बढ़िया। था। वो मेरा ओके R&D पुराना है। 2016-17 में मैंने हर एक परसेंटेज जो आप बोल रहे हो ना, 0.3 0.25 सब ट्राई किया है। सो ओके समथिंग विच वर्कड क्वाइट वेल वाज 0.5%। ओके ओके, क्योंकि उसके बियॉन्ड मैं रखूंगा तो शायद लॉस भी बड़ा आएगा, जिस दिन 1% के और नीचे जाएगा तो।
तो उससे बेटर है 0.5 अपने लिए अच्छा चलता है। तो ये जो हम बफर रखते हैं, ओके किधर गया, हाँ, ओके, ये जो हम टॉप बॉटम में ये जो 0.5% का बफर रखते हैं, ये वी हैव स्टार्टेड सिंस वी स्टार्टेड ट्रेनिंग। ओके, तो ये तो पुराना है, लेकिन कभी कभी हम एंट्री लेवल पे प्रीवियस टॉप पे या प्रीवियस बॉटम पे जो बफर लगाते हैं, वो हम लोग ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है। और उसके वजह से ही अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे ट्रेड्स बचे हैं। ओके, आप लोग को एक चीज अभी रिसेंटली आपने नहीं देखा रहेगा कि यहाँ पे हमारा एक बाई ट्रेड मिस हो गया था। ओके, ये जो शॉर्ट आया उसके पहले हमारा बाई होना चाहिए था। ओके, ये जो है, ओके, ये मैंने डाला भी था कि हम लोग ओके, सो इफ यू लुक एट दिस, मैंने ये डाला भी था कि हम लोग 4300 के आसपास था, फिर ये हमने पहले दिन बफर ऐड किया था, फिर आधा % बढ़ा तो वापस सी किया, फिर ये 9 बाई वाला थे। हाँ, तो ये नो बाई ट्रेड इसके लिए मैंने डाला था कि अभी टॉप निकल गया है। ओके, तो आप ये देखोगे तो ओके, आई तो थिंक सर वो यहाँ 2 बार हुआ है वही हाँ ट्रेड में, हाँ, तो वो 2 बार ऊपर चला 2 गया। बार बचाया है। आपने को 2 बार वो 1% और 0.5% में उस दिन बचा है। इनफैक्ट खाली 20 पॉइंट से बचे हैं, क्योंकि अपना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर में अपना 1% पे कुछ ये इधर वाला ये जो हाई है ना, कुछ 620 का कुछ एंट्री था, और ये जो 606 का कुछ हाई है इधर। ओके, सो वो चीज एक ट्राइड एंड टेस्टेड है, और उसकी वजह से ही अपने लॉसेस कम हुए हैं। ओके, आपको शायद लग रहा है कि भाई 90,000 आ सकता है। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, अभी वो लॉसेस नहीं आने चाहिए अपने को। सर वो 505 में एंट्री होने वाला था, 485 से घूम गया। हाँ, 488 का हाई मारा था। 485, हाँ, 488, 85 से घूम गया। हाँ, so that is where we had actually made some saves. Okay, तो वो तुमको एक्चुअली ये हमको बहुत काम आता है वो बफर। ओके, सो दैट इज वाई हमारे ये टाइम बैक टू बैक लॉसेस कम आए हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट एंट्री लेवल बफर्स। सर तो मोटा अगर हम बात करें तो जब फर्स्ट टाइम हमें स्वे चार्ट को मतलब 75 का लॉस आया था, फिर हाँ, लास्ट ईयर आई थिंक सो 36 या 40 का आया था। नहीं 43,000 है, फिर अभी 25 है। ओके, तो सर ये हमने सर क्या मोटा बोलो तो क्या सर हमने नया ऐड किया कि इस वजह से हम लोग वी वर दिस मच सेफ? दैट इज माय एक्सपीरियंस इन बैंक निफ्टी। अभी वो मैं कैसे बताऊं? That is नहीं, अरे दैट्स अ यूएसपी, कमल सर का यूएसपी है सर। नहीं सर, हमारे जो सिस्टम पे ये आधा % वो 1% वेला जो सिस्टम ही है ना, वही वो मेरा आरएनडी रहता है, और वो आरएनडी 6 महीने मेरे अकाउंट में होता है, उसके बाद इधर रूल बन के आता है, उसके बिना कुछ नहीं आता है। ओके, तो जो भी उसका प्रॉफिट लॉस है वो मैं बेयर करता हूँ मेरी सिस्टम पे। ओके, सो अभी तो मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज नाउ इट इज वर्किंग। परफेक्टली वर्किंग सर। बस एक तमन्ना है सर, जल्द से जल्द पूरी हो जाए। 2 बैक टू बैक लॉस नहीं देखे हैं, जब स्टॉप लॉस हिट होता है 1% का नहीं देखा है, तो वो देखना अभी तमन्ना है। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में दे देंगे, हमको माफ कर दो भाई। बाकी सब लोग मारेंगे तुमको पकड़ के। नहीं सर, उस टाइम पे के लेवल का खास देखना कि उस टाइम पे कैसे लेवल वर्क करते क्या आता है। इतनी बार बचा है वो नहीं देख रहे हो आप लोग। हेलो मैं शायद हाँ, बोलो। पहला सर। सर फर्स्ट टाइम मैं ऐसे देख रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं देखना है, किसी को लॉस देखना है बार बैक टू बैक। मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी 9 कंसेक्यूटिव प्रॉफिट हमने किए थे, 3rd कंसेक्यूटिव प्रॉफिट से मेरा मैसेज हो गया था, सर लॉस कब आएगा, लॉस कब आएगा, लॉस कब आएगा। कमल सर कंसेक्यूटिव लॉसेस के लिए रेफरेंस दूं क्या? नहीं मत दो, जाने दो, बदनाम मत करो किसी को। यहाँ पे हम किसी का नेगेटिव नहीं बोलना चाहते। ओके, तो हम हमारा देखेंगे। अच्छा, अभी डेटा इज बीन लोडेड, सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ वी गेट द लेवल। सो आई थिंक शेयरऑन का डाउट था एंड एवरीवन वाज आस्किंग दैट, तो लेट अस फर्स्ट डू दैट, ओके, एंड देन आई विल हैंड इट ओवर टू मोतीलाल, बिकॉज इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड to become a sub broker and start their own clientele journey. Okay, so see, one thing is this is really working good for many people who have started. हम लोग सबने आकाश और
संजय और उन लोग सबका जर्नी भी देखा, दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट इन टेलीग्राम. आई डोंट नो दौलत कंसल्टेंसी से कौन आज ज्वाइन किया है, बिकॉज आई सॉ यू नो समवन हैज जॉइंड, बट हु इज जॉइंड आई डोंट नो. ओके, या तो वो लोग घूमने में है, उतना मुझे मालूम है, दे वर रोमिंग आउट. ओके, so now let's see what it is. So see, the close is 42,767.35. Okay, so now that is going to be the closing here. ये पहले दिन का सर. ये आज का है ना अभी हाँ 767. मतलब हाँ, आज point closing. आज का क्लोजिंग. ओके, तो आपका क्लोजिंग आ गया इधर. फिर इधर मैं 10 तारीख डाल दूंगा कि ये कल के लिए है. ओके, now this still remains same because हमको नया टॉप नहीं मिला है, but we now found a bottom. Okay, so we will get an entry of sell below. Okay, -25 at the rate. अभी क्या है वो देखूंगा. Okay, ये 767 मतलब it is almost at 800 and this is 350, so almost 300 plus points है. Okay, so then what we will do is we will add just 0.5% buffer to it. Okay, so 0.5%, so that ये 1% होना चाहिए minimum. Okay, so 42,67 767 minus 42,358 is just 310. Okay, तो 310 नहीं चाहिए, 1% is at least 420 points. Okay, 410 होगा. हाँ 410 होगा भाई. 410 हो गया क्या? अरे हाँ, 410 हो गया. हाँ हाँ, then तो we don't need buffer. अरे हाँ, बराबर है. यस यस देवेन भाई, आप जाग रहे हो, मैं सो गया. यस सर, मैं पूरी तरह से जाग गया हूँ. Sir, sorry, can you please repeat? Possible? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट. 358. Okay, so this is our previous bottom. Okay, see the difference between एक मिनट, ये आप देख लो. अगर अपना क्लोजिंग प्राइस इज उलझा सिमसिम. Okay, so see closing price is 42,767. Our entry is 42,358. So difference is 410 points. Okay, so now this is approximately 1%. 420 should be it. तो अभी 10 पॉइंट के लिए मैं 200 पॉइंट का बफर नहीं लगाऊंगा. Getting it? Yes. So now this is going to be my entry for my short trade. अच्छा कि ये मार्केट ऊपर गया. Okay, एक नया बॉटम भी तो मिल गया. Okay, so now this becomes our entry. Okay, so I am not going to add any buffer here, and if triggers, keep 1% SL at इधर ही आ जाओ. दो कैलकुलेटर क्या, राइट. Okay, so 42,358 multiplied by 1.01. Okay, so 782. Okay, so that is going to be it. So 42,782 is going to be the stop loss. अभी ये भाई साहब तो अभी आज क्या धूप खिला है मालूम नहीं है. So Nifty is above again 173.20. बाकी सब सेम रहेगा आपको उसमें, because this is still the same top. Okay, this is going to be the stop loss. So 317. तो 317 पे आधा टक्का अपना जो बफर लगता है वो, तो 409. ओके, सो नाउ अगर ये कल नीचे गया तो आज का जो ये क्लोजिंग है उस पे आधा टक्का अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा. ठीक. So this is the levels for tomorrow. Sharon, clear? Any doubts that you have, or anybody has any doubts on this? सर एक बार फिर से क्लियर कीजिए. ये 0.5%, 1% और 0 जो भी हमने रखा. अभी देखो, अभी मेरा एंट्री क्लोजिंग प्राइस और एंट्री के बीच में ऑलरेडी 1% का डिफरेंस है, तो मैं कोई बफर नहीं लगाऊंगा. ओके, इफ दिस वाज से 558, 358 के जगह पे ये 558 होता था तो मैं आधा टक्का का बफर लगाता था, बिकॉज मुझे मिनिमम 400 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए. ओके ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. मुझे मिनिमम 400 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए मेरा क्लोजिंग से लेके एंट्री ऑन आइदर साइड, चाहे वो ऊपर का एंट्री हो या नीचे का एंट्री हो. ओके, और 1% कभी कभी हम लगाते हैं.
1% कभी लगाएंगे, अगर ये 658 होता था या 658 या 660 होता था तो मैं 1% लगाता था। ओके, 0.5 का डिफरेंस भी मैच नहीं हो रहा तो 1%। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें फिर मैं 0.5 से वो 0.6 0.7 वो सब टाइम पास नहीं खेलता हूँ, या तो 0.5 का डिफरेंस चाहिए। हाँ, so either 0.5 or 1% will be added as buffer. That's अच्छा, चलिए, थैंक यू सर। okay. So राहुल का डाउट क्लियर हो गया। अभी शेरिन का आई डोंट नो, शी सेड शी इज क्लियर या व्हेन यू टेक, हाँ, so even that is yes, minimum difference should be 400 points. Yes, yes, doubt on buffer in bank nifty. Okay, so मनीष का भी खत्म हो गया, so good. Okay, so any other queries, any other doubt before we give it to Motilal to speak? हेलो सर ये हेलो, हाँ किरण बोलो। ये 1% होगा और 400 पॉइंट्स होगा। हाँ नहीं, परसेंटेज के हिसाब से तो 436 है। हाँ, ये 4%, should we take 4% or 1%? अरे you have to take 400 points difference चाहिए minimum। उसके और लिए तुमको जो करना है वो कर। ओके। હેલો સર, ચેતન બોલું છું. હા ચેતન સર આમાં નિફ્ટી માટે પણ સેમ જ લોજિક યુઝ કરવાનો છે ને, પર્સન્ટેજ વાઇઝ ગેપ નો? મને अच्छा one request I do, why not you all guys doing nifty? क्या है रिटर्न देखो 50% 55% रिटर्न क्यों कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ। नोटेड सर। बैंक निफ्टी इज गिविंग यू 120 130%। नहीं सर, सर उसमें लॉजिक ऐसा है कि अभी ऐसा ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी का, अगर नहीं लग रहा है। नेवर डू दैट, नेवर डू नहीं दैट, नहीं ऐसा नहीं, वैसा गलत काम मत करना, मर जाओगे किसी दिन, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट बैंक निफ्टी का निफ्टी लेके जाएगा। ओके, ये मेरे क्लाइंट में हुआ था, तो आज दोनों बहनों में झगड़ा हो गया है, क्योंकि एक बहन में कभी मैंने निफ्टी किया नहीं, दूसरी बहन में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों किया, तो उसका अकाउंट 50,000 कब में चल रहा है। ओके, तो वो मत करो। Sir, can you please repeat this, Sanjay? So normally, if you have spare capital, okay, and you don't have anything to do, so Okay. there is no open trade, what do you do? And then Nifty is getting triggered. Should you trade Nifty? My answer is straightforward, no. See, when you are married to your wife, you are looking for girlfriend, यार। बहुत बड़ा पाप है ये, ऐसा मत करो। नहीं, मैं आज इसीलिए सर आपको पूछ लिया हो, इसीलिए मैंने कुछ किया नहीं। ऐसा मत करो यार, वो बेचारी सदा सुहागन देके तुम्हारा लिए वो करवा चौथ करती है और तुम उसी को मार रहे हो, ऐसा मत करो। Be loyal to one. હેલો સર, એક ક્વેશ્ચન છે. મારું કેપિટલ છે ને એટલે 2.5 લાખ થી 1 લોટ પર વધ્યું છે, એટલે અરાઉન્ડ મને 4.5 લાખ પ્રોફિટ હશે અંદાજે ચાલુ કર્યું એમાંથી. બટ હવે મારી પાસે કેપિટલ વધારે નાખવા માટે છે, બટ મારું માઇન્ડ છે ને સર, હું સમજો 4 લોટ થી કરવાનું પ્લાન કરું છું, તો માઇન્ડ થોડું શિવિર થઈ રહ્યું છે, તો શું કરું? First, do with the thing that you are doing. Okay, build your conviction. કન્વિક્શન આવી ગયું છે, પૈસા Conviction બી છે. આવ્યો તો ડાઉટ જ ના આવે, તો શ્યોર ના થાય. આજે અચ્છા 6000 ક્વોન્ટિટી પર હું શ્યોર નથી થતો, 35 લાખનો પણ મેં પ્રોફિટ નાખ્યો તો તમને। સર મારે શું કરવું જોઈએ એની માટે? सर ये आखिरी सेंटेंस में बोली ना सर। हाँ हाँ, वो क्या बोल रहा है कि उसके पास अभी ज्यादा कैपिटल भी है डालने के लिए, लेकिन उसको डर लग रहा है अभी भी कि वो ट्रेड डालने के लिए ही डर ये लग रहा है कि मेरे को आया हुआ पैसा कम ना हो जाए, वो डर हो जाता है माइंड में, ऐसा हो जाता है। नहीं, so that is where you are still low on conviction on the system. Okay, my only thing is trust the system. देखो, मैं इसके लिए मेरा क्वांटिटी डिस्प्ले करता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं। अभी मेरा 6500 क्वांटिटी होने वाला है, because 60 lakhs का प्रॉफिट है, will increase my quantity. Plus my clients are increasing their portfolio also. ये प्रॉफिट देके और डालते जा रहे हैं। ओके, तो मेरे का और क्वांटिटी भी बढ़ने वाला है। ओके, so you need to understand, if I am able to do it with that quantity, you should not bother only. Noted, sir. Master is also almost doing इसमें same. एक छोटा सा डिफरेंस है कि अभी जो हम एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज करने का बोल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम आवर ओन पॉकेट, और आप जो बोल रहे हैं सर, दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द मार्केट। हाँ, तो व्हाट इज एडवाइजेबल? तुमको एडिशनल भी डालना है तो तुम एडिशनल 2.5 लाख के मल्टीपल में डालो, और जिस दिन डाला उधर से 1 साल देखो, फिर तुम तुरंत मत दुखो। गॉट इट? सर एक बेस्ट वे ये है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसा आपने बोला था कि जैसे लोट बढ़े तो हमें साइकोलॉजी यही रखना है कि हम 1 लोट में ही कर रहे हैं, फिर 1 लोट हो या 4 लोट हो, मल्टीपल 2.5 के चल रहे तो सेम ही रहेगा,
और जब भी नोट बढ़े तब प्रॉफिट लॉस मत देखना, सिर्फ काउंट द पॉइंट्स, डोंट लुक एट द रुपीज, हाउ मेनी यू आर गेटिंग, हाउ मेनी यू आर लूजिंग. द बेस्ट वे I was able to increase my capacity is this. हाँ, so this is one thing. Even I think भूषण का भी ये सेम डर था. अभी वो बोलता है कब सर 5-6 लाख का लॉस भी देखता तो मेरे को टेंशन नहीं आता. हाँ सर, क्योंकि मैं अभी भी ना पहला अकाउंट ही देखता हूँ. जिसमें ज्यादा अकाउंट है वो देखता ही नहीं हूँ. ओके, ऐसा ही करता हूँ सर मैं भी. अरे सेम है. किसी को बढ़ाना है ना तो एक हाँ. काम करो, एक अलग से अकाउंट खोलो जिसमें खाली टॉप बॉटम रहेगा. डेली मस्ती के लिए जैसे मेरा नहीं वही कर अलग सा एक ही काम करता हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं करता हूँ. आपको एक लॉट पे कन्विक्शन है ना, बस एक लॉट पे कन्विक्शन है तो हाँ. उतना ही रखो कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस रखो पूरा. हाँ, जब सर, तक वो आपका भी- कन्विक्शन बढ़ता नहीं ना तब तक उसको एक ही लॉट रखो. कन्विक्शन बढ़ेगा ना तभी सर तुम उसको कन्विक्शन मैंने ना 10 साल का बैक टेस्टिंग आपने जैसे बताया था ना वीडियो में, तो हाँ, मैंने हाँ. 5-7 बार किया है. कभी भी मेरे को नुकसान होता है ना तो मैं 2 घंटे उस पर बैठ जाता हूँ. मेरे माइंड को वो आदत पड़ गई है, बट है ना वो अंदर मेरा डर बैठ गया है, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो लॉसेस किए थे ना वो अभी तक माइंड से नहीं निकल रहे. मैं अभी नेट प्रॉफिट में चल रहा हूँ पहले से. वो निकालोगे नहीं ना आपका तो नहीं वो प्रॉफिट सबका है. बिजनेस नहीं है. वही तो है. अपने को अगर मैं पूरा साइकोलॉजी losses से थोड़ा बुला रहा स्ट्रगल है. कर रहा है, ऐसा हो रहा है मेरा. नहीं, so psychology, see, normally thing is, for psychology, I only have one thing is, कि आपका मैक्सिमम जा जाके कितना जाएगा. मैंने बराबर. कितना ड्रॉ डाउन बोला है, 75,000 पर लॉट. अगर उससे ज्यादा भी जाता है तब भी आप सोचो ना. मुझे मालूम है कि हम लोग को अभी स्ट्रेट वो 9 प्रॉफिट आया था ना, उसके हाँ. बाद 10वां लॉस आया तो पीपल और यार लॉस आ गया. अरे नहीं. तुमको यार 2 लाख का प्रॉफिट के बाद हक बनता है मार्केट का भी थोड़ा टैक्स लेने का. करेक्ट. राइट. सो दैट यू नीड टू होल्ड. ओके, तो उसमें टेंशन मत लो. और बस बस. ओके. पूरा साल देखना है. तुम 1-2 ट्रेड मत देखो, तुमको पूरा जिंदगी देखना है कि भाई तुम्हारा जनवरी से जनवरी कैसे जा रहा है. डोंट काउंट ऑन 1 or 2 फेलियर्स. ओके यार, उतना तो यार तुम भी स्कूल में थे तो क्या हर बार 100 में से 100 आता था? नहीं ना. तो कभी कभी तुम्हारा भी बराबर चलता था, कभी कभी नहीं चलता था. तो ये तो ऐसे भी मार्केट है. You have to wait, give time, and then see how it is working for everyone. And चलेगा ये सिस्टम. सी मैं एकदम सिंपल चीज में बोल देता हूँ, यू आर फॉलोइंग मार्केट एवरी टाइम. ये सिस्टम कभी पुराना नहीं होने वाला है. मैं इतना लॉट करूँ या मैं इसका 10 टाइम्स भी करूंगा, इससे कुछ फर्क नहीं आने वाला. ओके, वी आर फॉलोइंग मार्केट, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन आवर ओन. तो मार्केट में अगर मैं मार्केट के साथ चल जाऊंगा तो मैं पैसा बनाऊंगा ही बना. तो वो टेंशन मत लो. यस खाली उसी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा रूल्स चेंज करता हूँ ताकि ये जो फॉल्स एंट्रीज है वो वॉलेटिलिटी की वजह से जो आ जाते थे वो हम लोगों ने अवॉइड किए हैं. ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर वी अवॉइडेड ऑलमोस्ट 14 to 15 सच ट्रेड्स. पूरा साल भर में हम देखो खाली 27 ट्रेड है, जबकि अपना पहले का एवरेज वाज अराउंड 40 के आसपास. राइट. तो वो सब हम लोगों ने नॉइस निकाला है. तो और भी अच्छा ही करेंगे अभी हम गोइंग अहेड आल्सो. ओके, सो एंड अगर कुछ होता है तो हम लोग कुछ नया नया रूल पे वर्क करेंगे या कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस है तो उस पे कुछ हम काम करेंगे. तो वो टेंशन नहीं है, बिकॉज आई हैव दैट मच कैपिटल दैट आई कैन नॉट रिस्क इट एंड आई कांट वेस्ट दैट कैपिटल. ओके, तो मेरे कैपिटल पे तो मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आई विल बी नॉट एबल टू सस्टेन इन द मार्केट. राइट. तो वो मेरे को करना ही है. सर मेरा एक क्वेश्चन है. दिस इज प्रतिमा. सर जब मार्केट साइडवेज रहता है, लाइक एक जोन के अंदर वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है जिगजैग पैटर्न पे, उस टाइम पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? लाइक हम लोग क्या वेट करेंगे पूरा? तभी प्रतिमा कुछ नहीं कर सकते. मार्केट अपने को स्टॉप लॉस देगा, ले लेते हैं. अच्छा, उस टाइम पे हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे जितना होगा. हाँ, क्योंकि तभी मेरे ख्याल से साइडवेज में दोनों साइड ट्रिगर करवा के अगर देगा तो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट साइडवेज मूवमेंट ओनली दिस 1% डिफरेंस we came across. Okay, and then we understood कि अगर एक बार 1% के ऊपर का सिस्टम निकल गया ना तो फिर वो डायरेक्शन पकड़ता है मार्केट, क्योंकि 1% गलती से नहीं जाता कोई. और अगर सोचिए कि मैंने आज बाई ट्रेड लिया, आज ही मेरा एसएल 1% का जैसे आप लोग रखते हैं उस दिन के लिए 1% का रखते हैं, तो मेरा एसएल हिट हो गया, मेरा शॉर्ट ट्रेड बना और मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है,
हो सकता है कि नहीं, मेरा उस दिन सेकंड डे ट्रेड वन पे शॉर्ट ट्रेड नहीं होता है। डे वन पे देर इज नो शॉर्ट ट्रेड। डे वन इज ओनली सिमिलर क्वांटिटी 1%, सो वी विल नॉट टेक अनदर ट्रेड ऑन डे वन। वी विल वेट ओके फॉर ओके सेकेंड डे फॉर सिस्टम एंट्री। ओके ओके ठीक ओके, है नहीं तो बजट के दिन हम खाली ट्रेड ही डालते रहेंगे। हाँ हाँ, तो वो हम लोग नहीं करते। नॉर्मली आप अभी फर्स्ट बजट आपका हमारे साथ रहेगा, वी विल बी विदाउट एनी ट्रेड ऑन बजट डे। अगर हमारा ओपन अगर हम ट्रेड लोगों है का हाँ अगर तो हम लोगों हम का बंद उस कर दिन जो देंगे। लो भी टूटेगा तो भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं प्रीवियस जो नहीं लो रहेगा नहीं कुछ नहीं नहीं करेंगे। नहीं, कुछ नहीं ओके करेंगे। बिकॉज बजट इज वेरी वॉलेटाइल एंड इट कैन गो आइदर डायरेक्शन। सो इट इज बेटर कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल टूटता है और वहां पे एंट्री मिलता है, देन वी विल थिंक ऑफ इट, बट अदरवाइज वी विल नॉट डू दैट। सर और हेलो बजट सर। ट्रेड एक्टिवेट हो तो भी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सर अगर बजट डे के 1-2 दिन पहले एंट्री मिलती है तो लेने वाले हम लोग। तो हम लेंगे भी, और उसमें जो मिल रहा है वो बजट के पहले निकल भी जाएंगे। ओके, बिकॉज बहुत बार बजट प्राइस दिन होता है, सो हाँ एंट्री मिलके एग्जिट भी मिल सकता है बजट के दिन। यस यस यस। सर कंफर्म है कि बजट पूरा वोलेटाइल रेट है? क्योंकि ये भी मेरा भी फर्स्ट बजट ही होगा। सर बजट के दिन गोवा जाने का, जैसे कमल सर चाहते हैं। मैं अभी भी मैं गोवा ही हूँ 21 फरवरी को। मैं 27 को जा ही रहा हूँ और मैं फर्स्ट को ड्राइव बैक करता रहूंगा। तो सर बजट के दिन हम स्ट्रेंगल ड्राई कर सकते हैं? हम कुछ नहीं करते, वो टॉप बॉटम का पार्ट भी नहीं है सर। तो वो नहीं नहीं, हम इसमें मतलब नहीं नहीं, वो ये फॉरम का ही पार्ट नहीं। तो और किसी को और कुछ क्वेरीज है क्या? नहीं, पर सर अकेले अकेले सर वन मोर थिंग, हाँ सर, सबको लेके जाओ ना, तो कोई ट्रेड चलो नहीं करेगा। चलो, मैं बोल रहा हूँ 27 टू फर्स्ट जा रहा हूँ। भूषण पूना होके ही जाऊंगा, गाड़ी से ही जा रहा हूँ। लॉन्ग वीकेंड है, 26 से वीकेंड है। हाँ 27 से लेके फर्स्ट तक उधर ही हूँ। आ जाओ, सब लोग को इनवाइट है, चलो। सर एक चीज, लोकेशन और एड्रेस भेज दो। ये पक्का। ये टॉप बॉटम जो हम कर रहे हैं, तो हाउ डू यू एडवाइज गोइंग फॉर इंट्राडे, या बिल्कुल एडवाइस करते ही नहीं? अरे बाप रे, इंट्राडे में मस्ती करता हूँ। ओके, तो अभी इंट्राडे के लिए तुमको थोड़ा बहुत अलग इंट्राडे का ट्रेनिंग है मेरा, वो अगर देखा रहेगा किसी ने तो खेलो। बाकी टॉप बॉटम मत करो। टॉप बॉटम आई थिंक देयर इज वन पर्सन, योगेंद्र दाबक, उसके भाई है इधर, देवेंद्र, ही इज डूइंग इट ऑन आर्ली आल्सो। सो यू कैन डू दैट। इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल। और कभी कभी बहुत पहले एंट्री भी दे देता है हमारे ट्रेड्स पे। ओके, सो यू कैन डू दैट इफ यू रियली वांट टू डू दैट। ओके, इंट्राडे में अगर टाइम है तुम्हारे पास तो। मैं मेरा आरएसआई के बेसिस पे खेलता हूँ। ओके, सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स अपार्ट ऑफ आरएसआई। सर उसके लिए एडवाइजरी नहीं है कोई? अरे नहीं पापा, बस हो गया। बच्चे को जान ले भाई, शांति से जीने तो दो। वो सब नहीं कर सकता हूँ मैं, बस यही है। चार्ट का बोल देना सर। चार्ट का क्या बोलना है अभी? सर कब वो दिसंबर वाला और जनवरी कब हमें कंटिन्यूस डेटा में कंटिन्यूस डेटा? अच्छा ठीक है, अभी ये देख लो। ओके, अभी अपना 25 तारीख को ये हो जाएगा, ये जनवरी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये मंडे से 23 तारीख से फरवरी का ही डेटा देखेंगे, और ये पूरा वीक हम खाली फरवरी देखेंगे। ठीक है, ओनली फरवरी, क्योंकि जनवरी तभी भी चल रहा है। ओके, और ये मंडे से 30 तारीख से हम कंटिन्यूस डेटा पे चले जाएंगे। क्लियर? खाली ये एक हफ्ता मैं प्योरली नेक्स्ट मंथ देखूंगा, प्योरली नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद वापस कंबाइंड चार्ट। सर बट लास्ट मंथ जो एक्सपायरी हुआ ना, दैट वाज सम टेक्निकल ग्लिच विद ट्रेडिंग व्यू आई सपोज। अरे आई डोंट कि नो, उसमें हो रही, वो सब छोड़ दो भाई, वो मेरे को नहीं मालूम। सिस्टम दिस इज वी आर फॉलोइंग दिस सिस्टम, दैट्स इट। जब तक सर नया टॉप या बॉटम नहीं मिल रहा तब तक कंटिन्यूस, फिर वो मिल जाए तो प्योरली फरवरी में वापस आ जाना ना। हाँ, फिर वो प्योरली फरवरी नहीं है, फिर वो तो तुम्हारा अगर नेक्स्ट वीक 30 तारीख के बाद आ रहा है तो तुम्हारा जनवरी के साथ मर्ज ही टॉप बॉटम रहेगा वो। सर हेलो सर, जो कंटिन्यूस डेटा कैसा देखता है ये ट्रेडिंग व्यू में, थोड़ा दिखा दीजिए। ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, वो चार्ट साइकिल में है। अच्छा साइकिल। ओके, यहाँ पे है, ये डिस्प्ले में आपको दिखेगा। ओके ओके, सर कोई नया बंदा है, किसी को 2-3 हजार क्वांटिटी करना है, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा सर? करो बिंदास है, अपने में बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं उतना क्वांटिटी। एडवाइस क्या, बिंदास करो।
लेकिन फिर उसको कम नहीं करने का, तुम जो क्वांटिटी आज से चालू करोगे वो 1 साल तक वही क्वांटिटी करने का, देन ओनली इट मेक सेंस। ओके, जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह इधर भी आता है। ठीक है, so now I think I'll give it to Motilal guys to go through and उनका जो I think this is what their proposal is. So anybody who wants to start sub brokership with them and do similar to what I am doing for my clients और जितना बाकी अपने बहुत सारे लोग कर रहे हैं, okay, so they have sent me their list. I think ये थोड़ा font छोटा है, okay, so I will increase the font size also, okay, and Bhavesh, you want to go and speak about it? I think चलेगा, आप बता दो लोगों को। Yes, yes, yes. Thank you, Kamal ji, for all the insight. सर वो फीडबैक ग्रुप में डाल देना सर, लेटेस्ट वाला। हाँ ये मैं डाल दूंगा, ठीक है। हाँ बोलो भावेश। Okay, okay. So, thank you, Kamal ji, for an opportunity. तो मैं सारे लोगों को एड्रेस कर देता हूँ। हाय एवरीवन, जैसे भी आपने देखा कि कमल सर के जो पैटर्न्स हैं और जिस हिसाब से उन्होंने ये पूरा एडवाइजरी ड्राइव किया है, तो आप सारे लोगों को एक और एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके और भी क्लाइंटल बेस को क्रिएट कर सकते हो, आपके नियर एंड डियर वंस को भी इसमें लेके आ सकते हो। सिंस कमल जी हैं यहाँ पे जो पूरा ये एडवाइजरी पार्ट ट्रैक कर रहे हैं और आप लोगों को मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जस्ट हम आपको एक प्रपोजल शेयर कर रहे हैं कि जहाँ पे ये सब ब्रोकरशिप का आप एक पूरा एक बेस सेटअप कर सकते हो हमारे थ्रू, मोतीलाल के थ्रू। और वी आर 3 पीपल इन ऑल। हमारे साथ अभी बने हैं मितेश नरसाना और मिस्टर अमर बरकुल। तो अमर इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम ओनली। तो हम एंटायर मुंबई में हमारा ब्रांच है मोतीलाल ओसवाल का, जहाँ पे हम लोग ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं। आप लोगों को खाली अगर मैंडेटरी में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशन प्रूफ और एक चेक की कॉपी जिसमें नेम प्रिंटेड होना चाहिए। तो ये 4 मेन सिंपल सा केवाईसी हम सॉफ्ट कॉपी में एक्सेप्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम आपका बिजनेस कोड जनरेट करते हैं। मॉनेटरी टर्म्स में बोले तो 10,000 की इसकी फीस जाएगी। एक्सचेंज में हम आपको रजिस्टर मॉनेटरी टर्म्स में हम आपको मेंबरशिप दिलाएंगे एज एन ऑथराइज पर्सन का, और एक्सचेंज ये आपको 7 से 8 दिनों में रजिस्टर्ड कर देगा। तो 2 ही दिन में हम आपको बिजनेस कोड दिला देंगे बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिया है और रजिस्ट्रेशन फीस आपने जो हमें दी है। इसके साथ में आपको एक रिफंडेबल डिपॉजिट भी मेंटेन करनी है, बिकॉज आप ये पूरा बड़ा सब ब्रोकरशिप का सेटअप करने वाले हो। आज आप भले 5 या 10 क्लाइंट से स्टार्ट करोगे, बट गोइंग फॉरवर्ड मंथ्स एंड मंथ्स, ईयर्स एंड ईयर्स आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप हो जाएगा आपका। और एडवाइजरी में जैसे हमने बोला कि कमल सर हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड किसी को भी अगर हम बोले इंडिविजुअली कि एवरी ईयर हमें एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम 100% हमारे कैपिटल को कैपिटलाइज कर सकते हैं, रिटर्न्स देख सकते हैं, तो इट वुड बी अ गुड साइकिल कि आप जितने लोगों को ये आपके अंडर में लेते हो तो एक आपका बहुत बड़ा सेटअप बन जाएगा। 2-3 पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड, अगर मैं एक्सटेंडेड डिस्कशन करूँ। 7-8 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन एक्सचेंज से ऑथराइज पर्सन का मिल जाएगा और आप टर्मिनल ले सकते हो हमारे थ्रू। वंस यू आर रजिस्टर्ड देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल की प्रोसेस सेम डे हम आपको बना के देते हैं विथ मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन आपके लेवल पे। किसी को अगर टर्मिनल नहीं लेना है और सीपी प्रोग्राम का भी एक हमारे पास में मोड है जिसके थ्रू हम आपको एंटाइटल कर सकते हैं कि कुछ जो एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे अगर आपने NISM का एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो फिर आपको डेरिवेटिव का सेगमेंट हैंडल करने नहीं मिलता है जनरली टर्मिनल के रूट से। अगर आप देखोगे तो आपको कैश सेगमेंट कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट डेरिवेटिव को मैनेज करने के लिए या लोगों के ट्रेड्स लेने के लिए आपको फिर NISM सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। तो उस केस में हम आपको हेल्प करते हैं कि सीपी प्रोग्राम के लिए भी हम आपको अपॉर्चुनिटी दिला सके, जहाँ पे भी आपको सेम 3 साल का सर्टिफिकेशन मिलेगा और आप आपके टर्मिनल्स को मैनेज कर सकते हो। टर्मिनल की बात मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि आपके बिहाफ में आपके क्लाइंट्स का अगर कोई भी आपको ट्रेड करना है, समझो वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वो कहीं पे भी आपका सपोर्ट चाहते हैं, जहाँ पे उनको कोई ट्रेड इनिशिएट करना है, तो ये टर्मिनल में जहाँ पे आपके सारे क्लाइंट्स का मैप्ड क्लाइंट कोड रहेगा,
इनकी पूरी मैपिंग आपको दी जाएगी। फॉर एग्जांपल 10, 15, 20 क्लाइंट्स होते हैं तो 20 क्लाइंट्स का टर्मिनल में आपको मैपिंग दिखाई देगा, जिनके थ्रू आप उनके बिहाफ पे ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो। पोस्ट दैट अगर हम और आगे बढ़े तो डेली अफेयर्स के लिए कहीं ना कहीं आपको अकाउंट ओपनिंग की जरूरत लगेगी, तो उसके सपोर्ट के लिए अमर बरकुल हमारे साथ में बने हैं। एंड इवन मैं सब ब्रोकरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आइडिया से मैं बात करूँ तो हम आपको अमर का डिटेल शेयर करेंगे, उनका मेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, सो डैट कि आप पूरे दिन भर में कभी भी उन्हें कनेक्ट कर सको, उनको और इन डिटेल में इस सेटअप के बारे में जान सको। क्योंकि अभी हमें जस्ट एक मास लेवल पे आपको एक 10-12 मिनट ही लेके पूरा समझाना है कि ये पूरा स्ट्रेटेजी कहाँ तक का है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके बिजनेस कोड का लेके आना और टर्मिनल सेटअप करना, केवाईसी के थ्रू क्लाइंट अकाउंट मैक्सिमम ओपन करना, और डेली डे टू डे अफेयर्स के लिए हमें बिजनेस की सपोर्ट की जरूरत है। तो हमेशा हर चीज का 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट आपको अमर बरकुल का रहेगा, साथ ही मैं भी बना रहूंगा ये पूरे सेटअप में। और हमारी 3-4 ब्रांचेस है मुंबई में, आपके आसपास के लोकेशंस में। एंड बाकी ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए हमारे साथ मितेश भाई भी हैं। तो मितेश जी भी कमल जी को मिले हुए हैं पहले, क्योंकि हम मोतीलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ में टच में रहते हैं। एंड आरएमएस की कोई अगर चीजें हैं, कुछ समझना है मार्जिन में, कोई लिमिट्स को लेके समझना है, कोई कैश मार्केट या फिर कोई, क्योंकि कोई भी क्लाइंट होगा कुछ भी अगर वॉलंटरीली भी काम कर रहा है तो मे बी उसे अगर कैश सेगमेंट की कोई जरूरत पड़ी है, वहाँ पे कुछ उसको दिक्कतें आ रही है, या फिर कोई मार्जिन को लेके दिक्कत आ रही है, एफएनओ में ऑप्शंस में लेके कोई चीजों को लेके, तो अमर एंड मितेश जी दोनों साथ में रहेंगे और वो आपके सारे डे टू डे अफेयर्स को एक्नॉलेज करेंगे, एड्रेस करेंगे। सो दैट यू नो वी वुड हैव एन एक मैकेनिज्म रहेगा जिसके थ्रू हम हेल्दी वे में इस सारी चीजों को लेके चल सके आगे। किसी को अगर इसके रिलेटेड कुछ अगर क्वेरी है तो यू कैन आंसर देम वन बाय वन। भावेश सर अमर यार, हेलो सर, एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू कमल सर, जिनको मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर से जानता हूँ, और इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर एवरीवन, मतलब एवरीवन उसमें अर्न कर सकता है। So for me, Mahesh Maskar is the one set example, जिन्होंने 2.5 साल 3 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, and he started with 1 lot, and today he has reached almost 250 lots above. And महेश सर को बाकी सब कुछ ट्रेड्स नहीं पता, he only follow कमल सर ट्रेड्स, that's it. सुबह ट्रेड आया, he will put order and अपने दूसरे काम में चले जाएंगे, बाकी वो मार्केट को नेवर नहीं देखते ही नहीं है। तो सर को यही शेयर करना चाहता था कि ओनली लेवल्स वो फॉलो करते हैं और ट्रेड्स करते हैं, बाकी वो कुछ और अपना आइडियाज उसमें शेयर नहीं करते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू अर्न। एग्जैक्टली राइट सर, कमल सर, आई एम राइट सर? यस अमर, एक्चुअली आपको उनकी जर्नी पता है महेश सर की। महेश सर इज आल्सो देयर। हां, ही इज देयर ऑन द ग्रुप। हां, ही इज देयर, ही इज देयर। महेश सर, वो भी वही करते यार, तो even Daulat is doing same thing. Yeah, I know. 240 वर गेलाय हा, 2 वर दिसत. So there are, I think, multiple sub brokers with us. So I think almost 15-16 already have started. There are many few new who are here starting. So मैंने ये मीटिंग मोतीलाल के साथ इसके लिए आपको ये कंफर्मेशन दिया, so that you know if anyone wants to start doing it, you can do this independently. Okay, मुझे इन्वॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली अमर या किसी को भी पकड़ लो and they will do all things for you. Okay. अरे कमल सर, हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई डोंट नो इफ आई ओनली सफर्ड और अदर्स आल्सो सफर्ड, ट्रेड जंप होना इस बार जो शॉर्ट ट्रेड जंप हो गया। सर नॉर्मली यू हैव टू पुट 10 to 15 पॉइंट्स और यू नो दैट इज फाइन, क्योंकि मेरा पूरा 6000 क्वांटिटी 10 रुपए के डिफरेंस में आ गया। मैंने 165 और 155 रखा था। हाँ, सो मिनिमम डिफरेंस शुड बी ऑफ 10 रुपीज। अरे ज्यादा भी रखो तो फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो रेंज में तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला है। जितना छोटा रखोगे उतना थोड़ा रेयर हो जाएगा, तो तुम एटलीस्ट 10-15 पॉइंट रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 1000 पॉइंट का जर्नी में 10-30 पॉइंट का कुछ वैल्यू नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ओके Okay, so I think, you know, no other queries, no other doubts.
anyone Franchise has charges sir कैसे हैं? huh Franchise charges 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 is what 25,000 is for your sub brokership and another 25,000 would be taken from your brokerage throughout. So normally it is 50,000. For us, it goes to 25,000 and we get into remiser thing जहाँ पे हमको देखो हमको क्या करना है लोगों के बिहाफ पे ट्रेड करना है ना बस उतना मिल जाता है और क्या चाहिए अपने को तो कौन सा दूसरा कुछ करना है नहीं तो उसके लिए टर्मिनल चाहिए रहेगा हाँ टर्मिनल इसमें इंक्लूड है राज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन टर्मिनल का कोई अलग सा कॉस्ट नहीं है। आप कोई ब्रोकर का देखोगे तो मंथली सेगमेंट वाइज चार्जेस लेते हैं, तो यहाँ पे इन हाउस टर्मिनल है जो हम लोग सारे क्लाइंटल को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। किसी को कोई टर्मिनल का कोई चार्जेस यहाँ पे हम लोग लेवी नहीं करते। सर लेकिन एक बंदा रखना पड़ेगा ना ट्रेड पंच करने में। तुम बंदा रखो या तुम खुद करो। नहीं, आप इनिशिएट कर सकते हो। हाँ 1 मिनट में होता है, कुछ इशू नहीं है। हाँ 1 मिनट एक नॉर्मल सा बाय सेल करना होता है। आजकल तो हम ये मोबाइल ऐप के थ्रू भी ये मैकेनिज्म अभी सीख ही रहे हैं सब लोग, मतलब 1-on-1 अभी कहीं ना कहीं देख ही रहे होंगे। दैट इज नॉट एन इशू। हाँ देवेन भाई आपका क्या क्वेरी था? हाँ 2-3 क्वेरीज थे। हाँ डेरिवेटिव सेगमेंट्स के लिए NISM सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है ना? हाँ लेकिन वो भी आपको so if you go for a remiser also with Motilal, they will manage with one of the training that you have to attend and they will get you the certificate. That is fine. So no need to get the NISM. No, yes, no need to go to NISM. The second... But NISM का एक प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है, वो करती है बस हो गया। अच्छा, और दूसरा ये था कि जब भी फंड ट्रांसफर करना है फ्रॉम क्लाइंट बैंक अकाउंट टू ब्रोकर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो कैसे होता है? मींस इमीडिएट होता है? इमीडिएट, सो जैसे जीरोदा वगैरह में है। हाँ सेम। सो यू इफ यू आर डूइंग से यूपीआई वगैरह तो इमीडिएट है। बाकी आप चेक डालोगे, क्लाइंट अगर चेक देता है। चेक नहीं, ऑनलाइन यूपीआई तो अभी 2 लाख के ऊपर यूपीआई नहीं चलता है ना। हाँ 2 लाख के ऊपर नहीं चलेगा, राइट। हाँ अपना 2.5 लाख रहेगा मिनिमम। अभी से रिसेंटली फ्राइडे को सबका खाते में पैसा आ गया। हाँ नहीं तो मंडे को अपना ट्रेड नहीं था, बट मंडे को अगर है तो इट शुड हैपन इमीडिएटली। हाँ तो NEFT है ना। हाँ NEFT मींस ऐसा कोई ब्रोकर में कैसा है कि आप ट्रांसफर करो फिर उनको मेल करो फिर उनको, ऐसा नहीं है ना, इंस्टेंटली दिखना चाहिए, नहीं तो क्या कभी ट्रेड मिस आउट हो जाएगा मंडे का। आपके अकाउंट में तुरंत आ जाता है। सो दैट इज नॉट एन इश्यू। हाँ दैट इज नॉट एन इश्यू। क्योंकि हमारा भी थोड़ा बहुत क्लाइंट्स का गया तो आज मैंने फोन करवा के सबका करवा लिए, तो दैट इज फाइन। ओके 0.2 मिनट्स 0.02 फाइन थैंक यू अमर जी। सर एक मेरे को इशू आया परसों के दिन। मेरे सिक्योरिटीज में अकाउंट है, HDFC सिक्योरिटीज में। एक साथ वो बड़ी क्वांटिटी नहीं ले रहा था, तो 500 करके ले रहा था। अरे ऐसा नहीं रहता है, तो यू हैव टू हैव अभी 900 क्वांटिटी से ज्यादा ट्रेड नहीं होता है, तो तुम्हारा सिक्योरिटी कौन सा उस पर भी डिपेंड करता है। सो बैंक निफ्टी में 36 लॉट्स इज द लिमिट। सॉरी कितना? 36 लॉट। 36 लॉट। तो अगर आप मेरा आपको एक्सेल दिखाता हूँ, उसमें 900 के मल्टीपल्स में जाता है। जो व्हाट हाई ट्रेड उसमें ऑलमोस्ट 2400 क्वांटिटी जाता है, तो इट गोज लाइक 996 ऐसा 900 600 पर क्लाइंट ना। हाँ मतलब वो पर ट्रेड फॉर वन क्लाइंट आल्सो यू कैन डू द सेम वे। हाँ मीन्स अभी समझो 10 जन का मिला के 2 लॉट 4 लॉट करके है तो सिंगल जाएंगे। बट अभी किसी का अकेला का ही समझो 2400 क्वांटिटी है। हाँ तो ओके, तो आपको 900 क्वांटिटी का बैच बनाना पड़ेगा उसको। तो वो उसको मतलब नंबर ऑफ ट्रेड इंक्रीजेस, दैट्स इट। सर वो सिक्योरिटीज वाला जो है मेरा, उसने 500 करके दिया मुझे। हाँ तो वो 500 किया रहेगा। वो एक्चुअली सेबी का 900 है, वो तुम्हारा सिक्योरिटी का इश्यू है। वो ट्रेड सेबी ने 900 क्वांटिटी बोला। सेकंड थिंग, इनसे मोतीलाल ओसवाल जी, भावेश जी, उनसे सवाल था कि रिकॉर्डिंग रखना कंपलसरी है क्योंकि ये प्रैक्टिकली नहीं होगा हम लोगों के लिए। हमारे लिए क्या अभी 5 से 10 क्लाइंट समझो है, 5 क्लाइंट भी है, तो वो पहले से उनको मालूम है कि हम लोग ही ट्रेड करने वाले हैं उनके बिहाफ में। नहीं, सो व्हाट वी आर डूइंग देवेन भाई, हमारे पास एक मोतीलाल का सिम है। ओके, उसमें से बाद में होने के बाद मेरे ऑफिस से जो मेरा ट्रेडर है
he calls everyone and tells and confirms them on the recorded line कि भाई आज तुम्हारे में ये ट्रेड हुआ है और ये क्वांटिटी मारा है हमने. So that is fine. So that is बट what ऐसे issue समझो आता है. पहले से ही एक अथॉरिटी लेटर लेके रखे नहीं उनके नहीं पास। नहीं नहीं वो सब नहीं होता है. नहीं तो वो मैं तो कब का बोल दिया रहता. नहीं, एक्सचेंज ने अभी तक हमें कोई ऐसे अप्रूवल्स नहीं दिए मेंबर्स को कि आप एक अथॉरिटी लेटर प्री डिटरमाइंड लेके कंफर्मेशन लेके चल सके. बट यस देयर आर 3 to 4 ऑप्शंस, देयर आर 3 to 4 वेज, बिकॉज आज से ये रूल नहीं आया है. इस रूल को तकरीबन 3-4 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है. काफी सारे सब ब्रोकर्स जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लाई करके चल रहे हैं. तो दैट शुड नॉट बी वरी फॉर यू. अगर आप पूरी तरीके से इसको मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वी विल डिस्कस विद यू. या श्योर ऑन दैट नोट. या थैंक यू. तो इनका नंबर शेयर कर देंगे हमारे. हाँ वो मैं डाल दूंगा. ठीक है अपना टॉप बॉटम ग्रुप पे सब डाल दूंगा. Okay. So any other queries, any other questions for top bottom or anything else? नहीं पिकनिक ड्यू है बस, उसके अलावा और कोई सवाल नहीं. No thanks. Okay. And I would like to share one small thing. हाँ. कि पहले जब ये लगता था कि मार्केट गिरेगा तो डर लगता था. आज ही हुआ मार्केट ऊपर गया एंड वन पर्सन टोल्ड मी कि उसको इन्फॉर्मेशन किसी और ने दिया है कि सेंसेक्स 600-700 पॉइंट गिरने वाला है. आई वाज हैप्पी. आने तो शॉर्ट ट्रेड होगा 25,000 मिलेगा. That is what you know. इक्विटी में 2-5 हजार कम होगा लेकिन बैंक निफ्टी में 25,000 का प्रॉफिट होगा. होने दो लॉस शॉर्ट. Okay, no, I think that is what we have changed the perception of all. So I think that is. हाँ बोलो. मेरी क्वेरी है वो एंटर के रिगार्डिंग ना, जो आपने वो जैसे बफर एक्सक्लूड कर दिया उससे, वो पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए. ओके सो सिंपल है ना, मेरे को 1% डिफरेंस चाहिए. तो आपने अगर वो रूल देखा है तो आपको ये क्वेरी नहीं आएगा. ओके सो इफ यू लुक एट दिस is the rule which we are using. See, simple. Okay, my entry level and my closing price should have a minimum difference of 400 points. अगर वो उतना है तो मुझे जरूरत ही नहीं है बफर लगाने का. इनकेस अगर इसकी बैंक निफ्टी की लेवल नीचे चली जाती है 20,000 30,000 तो उसके अकॉर्डिंगली 300 पॉइंट से 200 पॉइंट्स आ जाएगा. 1%. 1% वही तो मैं बोल रहा हूँ. अप्रोक्सीमेटली वी वांट 1% डिफरेंस. दैट्स इट. ओके थैंक यू सर. ओके ठीक है, देन आई थिंक वी आर गुड to stop. I think we overshooted by 17 minutes. Sorry for that. Okay, so now let's see how the first quarter of this year goes. Hopefully the start was good and we might still keep making money, right? So thank you everyone. And thank you sir. मैं एक चीज बता दूं, मेरे से गलती से रिकॉर्डिंग नहीं होगा. तो जिन लोगों ने अटेंड किया they have got it. बाकी लोग के लिए नहीं है. So I am sorry because मैं 5 मिनट पहले स्टार्ट किया था तो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था. चालू हुआ तभी रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल गया. Okay, so manual error है वो. I'm sorry for that, but it's okay. Okay, so thank you everyone and thank you sir. Thank you. Good night. Thank you. Good night everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Bye everyone. Bye. Thank you sir. Bye sir. Thank you. Record.